Hello, everyone. Now we study some important questions for board exam 2025 based on moving charge and magnetism. Okay, let's see. A charge Q coulomb moves in a circle at n revolutions per second, and the radius of the circle is r meter. The magnetic field at the center of the circle. So you know that revolving electron makes a current carrying circular loop. तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन चार्ज Q गिवन है, एन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, रेडियस कितना है स्मॉल r. तो फ्रॉम बेसिक थ्योरी E इक्वल टू नॉट Ni अपॉन r. फोर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ टर्न्स तो हम 1 ले लेंगे भाई. ओके बेटा. तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन r. दैट्स क्लियर. अब देखिए I बाई T एन रेवोल्यूशंस. तो 1 अपॉन टी को हम क्या कहते हैं एन. आई इक्वल टू एन क्यू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7. ये वैल्यूज पुट कीजिए बेटा. म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 एन क्यू अपॉन आर. दैट्स क्लियर. आर और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा. 2 पाई एन क्यू अपॉन आर 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर. अब देख लीजिए आप आपका कौन सा ऑप्शन मैच करता है. ऑप्शन डी 2 पाई एन क्यू अपॉन आर इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7. दैट्स क्लियर. ओके, नेक्स्ट. A helium nucleus makes a full rotation in a circle. Helium nucleus, helium. So charge on helium means twice of He4. Helium as a alpha particle, twice of. A helium nucleus makes a full rotation in a circle of radius 0.8 meter in 2 seconds. In 2 seconds. The value of the magnetic field B at the center of the circle will be. तो देखिए बेटा B इक्वल टू म्यू नॉट एन तो आप 1 ही ले लेंगे. हीलियम न्यूक्लियस है. नॉट I अपॉन 2r. दैट्स क्लियर. I क्या होगा बेटा Q बाई T. Q ट्वाइस ऑफ E. टाइम ड्यूरेशन क्या है 2 सेकेंड. I इक्वल टू क्या हो गया बेटा E. तो म्यू नॉट अपॉन आर. आपके ऑप्शंस में म्यू नॉट है, एज इट इज रहने दीजिए. कि 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 टू आर 0.8 मीटर. तो 0.8 इंटू 2 1.6 कैंसिल. तो म्यू नॉट टू पावर माइनस 19 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर. अब ऑप्शन चूज कर लीजिए बेटा आप. 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19. तो सेकंड ऑप्शन आ गया. ओके, नेक्स्ट. Filled at the center of a circular coil of radius r through which a current I flow is. Filled means magnetic field at the center of radius r through which a current I flow. The magnetic field at the center of circular coil B equal to mu naught Ni upon 2r. So according to options
Magnetic field is directly proportional to the flowing current. Flowing current directly proportional to R. ये wrong हो गया, R के inversely है. Inversely proportional to I, ये भी wrong हो गया, directly proportional है. Directly proportional to I, तो correct option C. That's clear? Okay. गेट बंद कर दो. Next, the magnetic field B within the solenoid having n turns per meter length. N turn per meter length means per unit length, and carrying current I ampere is given by. So you know that from basic theory, mu naught Ni. Magnetic field at a point on axial line of current carrying solenoid where n number of turns per unit length. That's clear. अब ऑप्शन देखिए बेटा आप, म्यू नॉट एन आई, सेकेंड ऑप्शन हो गया. दैट्स क्लियर. हर चीज का जवाब जो आपने ऑफलाइन क्लास में स्टडी किया है, आपकी नोटबुक है, सभी क्वेश्चंस का आंसर कॉन्सेप्ट उसमें अवेलेबल है. Filled inside a solenoid. Filled inside means belongs to axial line. For solenoid, mu naught Ni. So B is directly proportional to I. Directly proportional to number of turns per unit length. Small n का मतलब क्या होता है? N upon L. आप इस तरह से भी फिर ऑप्शंस आप चूज करेंगे. देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. लेंथ की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो करेक्ट ऑप्शन बी. के बारे में भी देखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो करेक्ट ऑप्शन तो आप पहले ही चूज कर चुके हैं, लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, magnetic effect of current was discovered by Oersted. Magnetic effect, according to Oersted, when current flow through a conductor, current carrying conductor, then conductor produce a magnetic field surrounding it. By Oersted. This phenomena is called magnetic effect of electric current. तो किसने डिस्कवर्ड, किसने रिसर्च किया था? Oersted. जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल में कर रखा है. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट, a long solenoid is formed by winding 20 turns per centimeter. 20 turns per centimeter. टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर यहाँ क्या करेंगे बेटा? 20 अपॉन 10⁻⁻², तो 2000 टर्न्स पर मीटर. तो इसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. दैट्स क्लियर. करंट नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मिली टेस्ला. 20 मिली टेस्ला, मिली means 10⁻³ टेस्ला, will be approximately टेस्ला मीटर पर एम्पियर. आपको करंट फाइंड करना है. ओके, so you know that B is equal to mu naught Ni, I is equal to E upon naught n. देखिए बेटा, B ये आपके 20 इंटू 10⁻³ म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन कितना है? 2000. दैट्स क्लियर. तो देखो 3 जीरो से -4, -4 को न्यूमरेटर में लेंगे, +4, तो 10, 200 से डिवाइड करेंगे, 100 4 से डिवाइड करेंगे, 25, तो 25 अपॉन पाई. पाई मीन्स 0.14, तो 8 इंटू 3 24, 8 पॉइंट समथिंग एम्पियर आ जाएगा. तो 8 पॉइंट समथिंग में आपको 8 दे रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया ना बेटा. गॉट इट. नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल. यू नो दैट B is equal to mu naught Ni upon 2R. Your correct option
First, from basic theory. Next, 1 Tesla is equal to, you know that 1 Tesla is equal to 10 raised to the power 4 Gauss. Tesla in MKS system, MKS और SI system किसमें हो गया? That's clear. Okay. सब बेटा बता रखा है आपको. Next, a current carrying wire produce around it. A current carrying wire, देखो, you know that current carrying conductor produce a magnetic field surrounding it. So a current carrying wire produce around it magnetic field only. ये magnetic field हो गया. Next, magnetic field due to a ring having n turns at a distance x on the axis of proportional to. तो देखिए magnetic field at a point on axial line of current carrying circular loop or coil B equal to mu naught ni r. रेडियस क्या है भैया इसका? r. r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़्ड पावर 3/2. ये रिजल्ट होता है बेसिक. आप देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल कह रहा है तो डायरेक्टली हम प्रोपोर्शनल की बात करें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो आ गया कि नहीं आ गया? आर स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2. ठीक है. अब एक मिनट, इसमें थर्ड ऑप्शन में ये देखें एन भी गिवन है, तो अब मोर करेक्ट आंसर के लिए हमको एन को भी इंक्लूड करना होगा. क्या गया? क्या एन को भी इंक्लूड करना होगा? आपका ऑप्शन क्या आ गया? दैट्स क्लियर. नेक्स्ट, a long straight wire carries an electric current 2 ampere. Long straight wire means long straight current carrying conductor. Long कितना long means infinitely long. 2 ampere current flow है. The magnetic induction means intensity of magnetic field. जो मैंने आपको बताया था, magnetic field, intensity of magnetic field, magnetic induction all are in same. सभी सेम होते हैं. मैग्नेटिक इंडक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर. तो B इक्वल टू नॉट I अपॉन 2 पाई डी नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -7. I 2 एम्पियर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? 5. तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4/5. 0.8 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -7. पॉइंट को आप रिमूव करें तो 8 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -8 टेस्ला हो गया कि नहीं हो गया? ऑप्शन. दैट्स क्लियर. ओके. देखिए, 2 infinitely long parallel wires carry equal current in same direction. Infinitely long current carrying conductors carry equal current in same direction. The magnetic field at a midpoint in between two wires, तो डिस्टेंस ये आप r ले लें at midpoint. देखिए, magnetic field due to first wire vertically downwards equal to mu naught I upon 2 pi d. क्या ले लेंगे? r/2. vertically downwards due to second wire vertically upwards, तो रिजल्ट तो यही रहेगा mu naught I upon 2 pi r/2 vertically upwards outwards both having. तो B1 आपका क्या है? क्रॉस, और B2 क्या है आपका? डॉट. एट मिड पॉइंट. तो बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, सो दे आर कैंसल आउट ईच अदर. देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी 0. योर करेक्ट ऑप्शन. तो दैट्स क्लियर. थ्योरी क्लियर है तो कुछ नहीं है. प्रोड्यूस with the motion of a charged particle.
विथ कांस्टेंट, देखो अस्मिता, वो हिमांशी, आप जहां कंफ्यूज हो रहे थे वो क्वेश्चन आ गया। प्रोड्यूसेस with the motion of a charged particle with constant speed, uniform speed, तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको बता रखा है हमने। अगर रेस्ट चार्ज है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड बेसिक थ्योरी में मैंने डिटेल पढ़ा रखा है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्यू नॉन यूनिफॉर्म speed means electric field, magnetic field and radiations means EMW, electromagnetic waves। क्या प्रोड्यूस करेगा? कई बार ऑप्शन ये भी आ जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन दिस क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, obtain maximum value of magnetic induction. Magnetic induction means magnetic field, magnetic induction means magnetic field means MFI, intensity of magnetic field. At a point, position vector of the point with respect to current element will make an angle with the direction of current. Very simple. आपको क्या कह रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू करंट एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ नॉट आई डेल एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो बी मैक्सिमम it is possible when theta is equal to 90 degree, because sin 90 equal to 1 मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना। तो करंट एलिमेंट से जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो कितना एंगल बनाएगा? π/2। तो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ। भाई साइन फंक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। वो कब होती है? 90 डिग्री पर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, direction of current, direction of current DC is flowing in a wire. A circular coil of single turn is made by bending it. Now the wire of same length is bent in axis and a circular coil of 2 turns and of less radius made. The magnetic flux density, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आई अपॉन ए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड से ही हो गया ना बेटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मींस मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्लियर हुआ ना? तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायरेक्शन करंट डीसी इज फ्लोइंग इन अ वायर। एक डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट है, ये डायरेक्शन की जगह डायरेक्ट करंट होगा यहाँ पर। is flowing in a wire. A circular coil of single turn is made by bending it. उस वायर से एक सर्कुलर कॉइल मेड किया हमने, बनाया, जिसमें एक ही टर्न है। ठीक है। नाउ द वायर ऑफ सेम लेंथ इज बेंट इन एक्सिस एंड अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न, 2 टर्न में। तो फर्स्ट कंडीशन में तो आप ले लीजिए, क्या है बेटा? नॉट NI अपॉन R। ओके, ये R1 हो जाएगा, एन आपको क्या गिवन है? 1। तो इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई R1 L के इक्वल ही तो होगा। तो वायर था, उसकी लेंथ हमने L अज्यूम कर ली। गिवन क्या हुआ बेटा? नॉट I अपॉन 2 L अपॉन पाई, R1 की वैल्यू रख दी ना। ओके, ये 2 कैंसिल हो गया, तो पाई म्यू नॉट I अपॉन L। ये तो फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है भैया? ये सेकंड कंडीशन में P2 नॉट 2 टर्न
करंट में हमने ओके आई 2 पाई R2 टू टर्न यूज किए, वो किसके इक्वल होगा? एल के इक्वल ही तो होगा। तो R2 की जगह हमने क्या रख दिया? L अपॉन 4 पाई R2। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। ओके अब देखिए, अब इसकी बात करें हम, अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? हम 2 है ना, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 4 पाई R2 थोड़ी जाएगा बेटा, R2 तो 4 पाई नॉट आई। ओके हो गया। ओके इस हिसाब से आपका क्या हुआ? 4 टाइम्स ऑफ द वैल्यू टू फर्स्ट। तो ये कितना आ गया बेटा? तो P2 इक्वल टू 4 टाइम्स। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? अब देखिए बेटा, when a charged particle move perpendicular to a magnetic field, then the quantity of the particle will change. देखिए बेटा, when particle moves perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। तो पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन में देखिए, डायरेक्शन चेंज हुई तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है आपकी? मोमेंटम। तो क्या चेंज होगा? मोमेंटम। तो स्पीड स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, तो कौन सा चेंज हुआ? मोमेंटम। द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी, बेसिक थ्योरी में पढ़ा रखा है। डायमेंशन के लिए देखो F इक्वल टू आई एल बी, यहां से करेंगे तो B इक्वल टू F अपॉन आई एल, न्यूटन एम्पियर इनटू, तो न्यूटन क्या हुआ बेटा? M1 L1 T-2, एम्पियर क्या हुआ? A1, मीटर क्या हुआ? L1, M1 L0 -2 -1, M1 L0 T-2 -1। सेकेंड ऑप्शन आ क्लियर। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय बायो सावर्ट लॉ। भाई देखो, कूलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेंज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ को शो करता है, किरचॉफ्स लॉ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड से रिमेनिंग 3 का कोई रिलेशन ही नहीं है, कौन बताएगा? बायो सावर्ट लॉ। नेक्स्ट, if the direction of the initial velocity of the charged particle is perpendicular to the magnetic field, perpendicular प्रीवियस क्वेश्चन में, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। फ्रॉम FM इक्वल टू Q क्रॉस P, तो V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाथ कैसा होगा बेटा? सर्कुलर पाथ। कैसा होगा? सर्कुलर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, an electron is moving, an electron is moving on a circular path of radius r with a speed v in a transverse magnetic field, transverse magnetic field, transverse। तो ट्रांसवर्स वर्ड का मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स क्लियर। फील्ड
E बाई एम, तो आपको E बाई एम का वैल्यू बताना है। E बाई एम क्या होगा? यू नो दैट मैग्नेटिक फोर्स एफ एम QVB 990 90 है। It is provided the centripetal force, provided the centripetal force, अरे फोर्स सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर के लिए हमें सेंट्रीपिटल और फ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। फ्यूडो फोर्स है तो ये किससे मिलेगा? मैग्नेटिक फोर्स से। क्यू ई ले लिया, ये क्या हो गया? एम बी स्क्वायर अपॉन आर बाई एम, वी कैंसिल वी अपॉन आर बी। योर करेक्ट ऑप्शन वी अपॉन आर बी, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर दिख रहा है ना भाई? स्क्रीन पर बिल्कुल आ रहा है ना ये? अब देखिए बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड dB vector due to a small current element del L from basic theory by use of Biot-Savart law, naught I del L sin theta upon 4 pi r square in vector form r cap due to sin theta apply the cross product del L vector cross r cap upon 4 pi r square। r cap को हम क्या लिख सकते हैं? r vector upon mod of r, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। ये वैल्यू पुट कीजिए तो म्यू नॉट आई एल एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा भाई? 4 पाई आर क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन आप चूज कर लीजिए आर क्यूब। तेरा बजे म्यू नॉट आई डेल एल क्रॉस आर वेक्टर 4 पाई आर क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, डायरेक्टली टिक कर सकते थे। ओके। The strength of the magnetic field at a point, the strength of the magnetic field at a point R near a long straight current carrying conductor wire is B, the field at a distance R by 2। तो देखिए बेटा, the strength means मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है वो आपको फाइंड करना है। डिस्टेंस R पर कितना है? B है, तो R by 2 पर क्या होगा? तो यू नो दैट फ्रॉम बेसिक थ्योरी नॉट I अपॉन 2 पाई D। डी की कंडीशन में आपको फर्स्ट क्या दे रखा है बेटा? 2 पाई आर इक्वल टू आर है ना फ्रॉम क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है? आर बाई 2, म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी वैल्यू क्या हो गई भाई? आर बाई 2। आर बाई 2 हो गया ना? आर बाई 2 हो गया तो 2 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो ट्वाइस ऑफ बी हो गया कि नहीं हो गया? ये ट्वाइस ऑफ बी हो गया ना, तो ट्वाइस ऑफ बी, करेक्ट ऑप्शन सी। दैट्स क्लियर? ओके ओके। अब देखिए बेटा, द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक इंडक्शन मींस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग अ करंट I at a distance R from wire is given by, so you know that P is equal to not I upon 2 pi D। डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? R, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। फाइनाइटली लॉन्ग के लिए यही होगा। अब करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए आप। देखो ये R तो न्यूमरेटर में रॉन्ग है, डी और बी का तो कोई चांस ही नहीं। इसमें म्यू नॉट डिनोमिनेटर में, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये 4 पाई आर आ गया कि नहीं आ गया? योर करेक्ट ऑप्शन। दैट्स क्लियर? कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है बच्चे को कि कंफ्यूज हो। ओके। अब देखिए बेटा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज टू अ स्ट्रेट कंडक्टर carrying current will be very simple। अच्छा रहे, कुछ नहीं है। देखिए आप ये सपोज कीजिए, तो मैंने आपको देखिए बताया था करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मैग्नेटिक लाइंस किस तरह से होंगी? तरह से होंगी। और स्ट्रेट के जब एक्सपेरिमेंट आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे स्टार्टिंग में,
ये बताया था ना तरह से। तो ये क्या हो गया, सर्कुलर द प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। इसके लिए मैंने आपको देखो इस तरह से एग्जांपल लिया था, ये कार्ड बोर्ड है, ये कोई कंडक्टर इसमें से पास हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल सॉफ्ट आयरन पीसेज को डाल दिया जाए और इसमें करंट फ्लो करें, तो सॉफ्ट आयरन पीसेज इस तरह से कोसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो गए थे ना बेटा, बाय राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें इन द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, तो योर करेक्ट ऑप्शन, दैट्स क्लियर। दोनों ही कंडीशन बता दिए मैंने आपको शर्मा जी, गुड। अब देखिए बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट इज, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। तो देखिए बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। अब ऑप्शन देखिए, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस रॉन्ग हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस रॉन्ग, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो आपने करेक्ट ऑप्शन तो पहले ही चूज कर लिया है, वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, समझ में आ गया। तो पहले आप बेसिक थ्योरी पर जाइए, ऑप्शन तो आपका अपने आप आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर आप क्लासरूम में रहेंगे तो ऑप्शन कहीं नहीं जाएगा, और आप क्लास में नहीं रहोगे तो ऑप्शन फिर आपका कहीं भी जा सकता है। टेस्ला, टेस्ला इज द यूनिट, टेस्ला देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, 4 वर्ड बताएं आपको, सबका एक ही मतलब है बी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर, ओके। 1 ampere current flow through an infinitely long straight wire, the magnetic field produced at a point 1 meter, very simple, mu naught I upon 2 pi D, mu naught 4 pi into 10 raised to the power minus 7, I कितना है 1 and distance कितना है 1, तो देखिए 2 into 10 raised to the power minus 7 टेस्ला, 2 into 10 raised to the power minus 7 Tesla, your correct option C. That's clear, that's clear. A proton or charged particle moving with velocity v is acted upon the electric field E and magnetic field B. The proton will move undeflected, प्रोटॉन देखो ये क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन है, चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v से मूव करता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोटॉन मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, इट इज पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स having same magnitude and opposite direction, so they are cancel out each other, so they are cancel out each other, means resultant force, electric force, electrostatic force plus magnetic force equal to 0, means that QE vector equal to Q क्रॉस P वेक्टर, दैट्स क्लियर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, E, B and V are mutually perpendicular to each other, okay, B is perpendicular to B, तो थीटा क्या हुआ 90 डिग्री, ओके। तो यहां की बात करें हम तो क्यू बी बी sin 90, इसमें भी आप मॉड लें क्यू ई हो गया, तो क्यू ई इक्वल टू बी बी, क्यू बी बी, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू अपॉन बी, तो इसका मतलब E एंड V आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, हो गया कि नहीं हो गया। मैं भी देखो कितना डीपली है, और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना है। नेक्स्ट, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q move in a circular path of radius r in uniform magnetic field of strength v, the frequency of revolution, देखो एक चार्ज पार्टिकल है,
और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। इन दिस कंडीशन मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइडेड द सुटेबल सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ओके ओके, तो यहां से हम बात करें आर इक्वल टू एम वी अपॉन टाइम पीरियड की बात करें तो ट्रेवल डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन 2 पाई आर अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आर की वैल्यू रखें तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। बेसिक थ्योरी में आपको मैंने बहुत डिटेल बता रखा है सारा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रेडियस, हेलिकल पाथ, सर्कुलर पाथ, पिच, सारा बता रखा है। अब देख लीजिए आप, क्यू बी अपॉन पाई एम अपॉन 2 पाई एम, फर्स्ट ऑप्शन। दैट्स क्लियर। An electron is moving along the x direction. Along the x direction, it enters a magnetic field in the y direction. In the y direction, देखिए x y, z डायरेक्शन लिखो और ये तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका बेटा? y डायरेक्शन में। इट्स subsequent motion will be straight line। स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन आपका मूव ये कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड किधर है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो पाथ सर्कुलर होगा। तो देखो स्ट्रेट लाइन ऑप्शन ए तो कंप्लीटली रॉन्ग है। अब देखिए एक्स वाई, एक मिनट, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस वी। अब प्लेन, हमें सर्कुलर तो आ गया लेकिन प्लेन देखना होगा। क्यू इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई हो गया, किधर है बेटा? एक्स डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वाई डायरेक्शन में। ये कैप माइनस ई वी बी, आई क्रॉस ये क्या हो गया? के वी बी माइनस के। यानी आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो ये जेड एक्सिस है, ये आपका क्या होगा? जेड एक्सिस हो गया ना। एक्स जेड प्लेन में आएगा। कौन से प्लेन में आएगा? एक्स जेड प्लेन। देखो बच्चा यहाँ मिस्टेक कर देगा, बच्चा ही कहेगा एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन नहीं, एक्स जेड प्लेन में आएगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव जेड, जेड में हो गया ना। अरे नेगेटिव जेड में हो गया ना बेटा। तो ये आपका जेड है, ये जेड डैश हो गया ना। तो कौन सा प्लेन आएगा बेटा? एक्स जेड प्लेन। ठीक, दैट्स क्लियर। Two free parallel wires, two free parallel wires carrying current in opposite direction. बेसिक थ्योरी में मैंने पढ़ाया, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। I1 I2, magnetic field at a point on second conductor due to first conductor vertically downwards, on first conductor due to second conductor vertically upwards। तो देखो ये आपका V1 क्या हो गया बेटा? ये तो मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स देखिए, राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, थंब अलोंग्स टू द करंट। तो इधर होगा डेल F1 और इसके लिए देखो डेल F2। तो अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ भैया? क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, और बेसिक थ्योरी में मैंने आपको बता ही रखा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो क्या कर, रुको रुको, टू थ्री पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक मिनट, हाँ
रुको, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बेसिक थ्योरी में आपको डायरेक्ट मैंने बता रखा है कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपेल करेंगे। थोड़ा डायरेक्शन में मिस्टेक कर दी थी, कोई नहीं। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स आ गया। इसके लिए भी क्या आया, डाउनवर्ड्स, P2। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स, फिंगर्स alongs to magnetic field, thumb alongs to current flow, डेल F1 के लिए बात करेंगे, डेल F2 ये क्या करेंगे भैया, रिपेल, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पहले हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई थी डायरेक्शन में, सॉरी, ओके। टू मेक द फील्ड, to make the field radial in a moving coil galvanometer, radial magnetic field from basic theory, radial magnetic field produced by horseshoe or concave magnetic poles. In radial magnetic field, all positions of rotational motion of coil, magnetic field always perpendicular to the normal और एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, ऑल पोजीशंस में बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ओके ओके। तो देखिए द नंबर ऑफ टर्न्स द कॉइल इज इंक्रीज, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए नंबर ऑफ टर्न से तो कोई मतलब नहीं है। मैग्नेटिक इज टेकन इन फॉर्म ऑफ हॉर्सशू, पोल्स आर कट इन, कट कॉनकेवली, ये कह रहा है पोल्स कट, तो कट करने से मतलब नहीं है, हमें केवली पोल्स लेते हैं हम, ये इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो आप प्रायोरिटी पर हम क्या रखेंगे, हॉर्सशू, हॉर्सशू हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर, ओके ओके, दैट्स क्लियर। The current sensitivity of a moving coil galvanometer can be increased. Current sensitivity, deflection produced by unit current I upon I, ओके। अब इसके लिए देखो I अपॉन I इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन A, ये क्या था NAB अपॉन C, तो C अपॉन NAB हुआ कि नहीं हुआ, आप देख लें। डिफ्लेक्शन टॉर्क, स्टोरिंग टॉर्क, ये क्या था NIAB, sin थीटा तो 90 ले लिया, 5 I इक्वल टू C अपॉन NAB, I इक्वल टू K5 है मैंने, इक्वल टू C अपॉन NAB इक्वल टू C अपॉन NAB, इक्वल टू क्या है भैया, C अपॉन NAB, क्या आ जाएगा, ऑन, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर, क्लियर। वैल्यू क्या है, C अपॉन NAB है, ओके। अब देखिए सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके इंक्रीज किया जा सकता है, एरिया वेक्टर को इंक्रीज करके इंक्रीज किया जा सकता है, बी को इंक्रीज करके इंक्रीज किया जा सकता है, सी को डिक्रीज करके किया जा सकता है। तो देखो इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ डिफ्लेक्शन कॉइल, बी भी करेक्ट है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, करेक्ट है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, द नंबर ऑफ टर्न्स द कॉइल, ये ऑप्शन दो बार लिख दिया, डी, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ओके।
तो ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों डी और डी तो कॉमन ही है, इसकी जगह ये आ सकता था डिक्रीजिंग द सी। ओके, तो इंक्रीज सकता था। तो इसमें ए बी एंड सी सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है। दैट्स क्लियर। ये डी ऑप्शन तो रिपीट हो गया है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, अ कॉइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर by connecting in parallel combination a small resistance, very small resistance, shunt resistance connected parallel with galvanometer. In this condition galvanometer convert into ammeter. तो लो रेजिस्टेंस इन सीरीज रॉन्ग हो गया, हाई रेजिस्टेंस इज पैरेलल ये भी रॉन्ग हो गया, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, by ammeter which of the following can be measured? ammeter करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया गया। दैट्स क्लियर। a galvanometer can be used as a voltmeter by connecting high resistance connected in series with galvanometer। the high resistance in series, ये ऑप्शन आ गया from basic theory। a voltmeter has a resistance of G ohm and range V volt। the value of resistance used in to convert into a voltmeter of range NV। गुड, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ये वोल्टमीटर है का रेजिस्टेंस क्या गिवन है। अब इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस हमने कन्वर्ट किया हाई रेजिस्टेंस, चार ले लो। तो इसकी रेंज क्या थी आपके पास में, करंट क्या था आई जी। तो आई जी तो जी तो क्या है आपके पास वी, इसकी केवल इसकी बात कर रहे हैं हम वोल्टमीटर की अभी। अब इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर हमने कन्वर्ट किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया वोल्टमीटर में। तो उसकी रेंज क्या हो गई फिर एनवी, एनवी रेंज हो जाएगी ना। तो इसके लिए क्या हुआ एनवी माइनस वी तो हुआ, कनेक्ट करने के बाद तो पूरा हो गया ना बेटा। भाई इसके लिए रेंज क्या है एनवी, इसके लिए एनवी माइनस वी हुआ कि नहीं हुआ। तो करंट तो इसमें भी सेम है, तो आई जी तो कैपिटल आर क्या हुआ एनवी माइनस वी। आई जी की जगह यहां से रख दो आप अपॉन वी, एन माइनस वन वी, ये वी कैंसिल हो गया, माइनस वन आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी एन माइनस वन इंटू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, मैंने पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया आपको। अब देखिए बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इनफाइनाइट फ्रॉम बेसिक थ्योरी, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर जीरो, जीरो सारा बता रखा है। ओके, देखिए बेटा, if current flow the same direction in two straight linear and parallel current carrying conductors, then the resultant magnetic field between them will be, देखिए current flow in the same direction in two straight linear and parallel current carrying conductors, same direction I1 I2। if current flow in the same direction in two straight linear and parallel current carrying conductors, then the resultant magnetic field between them will be, आइए जी बैठो, क्या भाई। हाँ बेटा देखो, टू पैरेलल long straight current carrying conductor, current flow through the conductor same direction,
मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट r/2 r/2। देखो P1 ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड, ड्यू टू सेकंड कंडक्टर वर्टिकली अपवर्ड। ओके, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड नॉट I1/2 पाई B डाउनवर्ड, नॉट I2/2 पाई r/2 ले लें अपवर्ड। ओके, r/2 तो μ0/पाई r I1 माइनस I2, इसको भी हमने क्रॉस कर लिया तो माइनस हो गया। इफ I1 इक्वल टू I2 तो B क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख देते हैं 0, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। यहाँ क्या कह रहा है? सेम डायरेक्शन तो कह रहा है, मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं कहा, तो वो सेम ही हो जाएगा। I1 I2 हमें एक ऑप्शन में आंसर बताना है, यहाँ क्या आ जाएगा भैया? 0। वो कैसे आएगा देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द इंडेक्स finger represent the middle finger represent the thumb finger। Fleming left hand rule FBI, तो थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स को। मिडल फिंगर है FBI किसको? करंट को। और ये इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फिंगर किसको? बी को। तो ये कंडीशन हो गई ना आपकी एफ आई। दैट्स क्लियर। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके ओके, अब देखिए, on doubling the speed of charged particle in a magnetic field, the time period of the particle remains। टाइम पीरियड अभी आपको हमने बताया था 2 पाई m/qb। तो टाइम पीरियड नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो रिमेन्स सेम। सेम मीन्स क्या रहेगा? अनचेंज्ड। दैट्स क्लियर। on passing electric current in a conductor, a magnetic field is produced around it। This phenomena is called on passing electric current in a conductor, a magnetic field is produced around it। or state magnetic effect of electric current, when current flow through a conductor, current carrying conductor, then magnetic field produced surrounding it। This phenomena is called magnetic effect of electric current। क्या कहेंगे इसको? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ कंडक्टर। ईस्ट टू वेस्ट इन अ कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर विल बी। देखिए बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आपका कंडक्टर क्या है? करंट फ्लो ईस्ट टू वेस्ट, ये कंडक्टर है। और आपका स्टडी पॉइंट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर। स्टडी पॉइंट आपका ये हो गया। तो राइट हैंड पाम रूल, करंट फ्लो, ठीक है। स्टडी पॉइंट स्ट्रेट फिंगर्स, तो पाम सरफेस किधर जा रहा है? नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। दैट्स क्लियर। वायर को हॉरिजॉन्टली रखेंगे ना बेटा। ये तो क्या हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। स्ट्रेट फिंगर टुवर्ड्स द स्टडी पॉइंट, तो पाम सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पाम सरफेस, तो पाम सरफेस किधर जा रहा है? टुवर्ड्स द नॉर्थ। ओके,
Next, according to Ampere's law, line integral of magnetic field for a closed path. According to Ampere's law, line integration of magnetic field mu naught times of total current passes through the closed path. So mu naught times of total algebraic sum of current passes through the area related to the closed path. So mu naught times आ गया कि नहीं आ गया? From basic statement of Ampere's circuital law. The direction of velocity v vector of a charged particle is parallel to or anti-parallel to magnetic field v, then the path of particle. तो देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन जीरो इक्वल टू जीरो. एंटी पैरेलल थीटा इक्वल टू 180, FM इक्वल टू QVB साइन 180, ये तो जीरो ही हो गया. दोनों ही कंडीशंस में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया बेटा? जीरो. तो चार्ज पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड एंड ओबे इनिशियल पाथ. तो इनिशियल पाथ हमेशा कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ. स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया कि नहीं हो गया बेटा? दैट्स क्लियर. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. The direction of force on current carrying conductor in a magnetic field can be found using direction of force on current carrying conductor in a magnetic field can be found using the rule Fleming left hand rule से भी फाइंड कर सकते हैं. Fleming left hand rule. Second option right hand palm rule. देखिए FLHR फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं. राइट हैंड पाम रूल, इससे भी तो मैग्नेटिक फोर्स. थंब अलोंग्स टू द करंट फ्लो, स्ट्रेट फिंगर अलोंग्स टू द मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द पाम सरफेस. तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, right hand palm rule. Okay. In moving coil galvanometer, the magnetic poles are concave shaped. horseshoe भी बोल सकते हैं. concave और horseshoe भी बोल सकते हैं. Okay. The deflection produced for unit current in a galvanometer I upon I is called current sensitivity. इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ मेरिट. The magnetic field of a number of sources in the sum of magnetic field of each source. The magnetic field of a number of sources is the देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द नंबर ऑफ सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं. तो ये किसके इक्वल होगा? वेक्टर सम के इक्वल होगा. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. भाई एल्जेब्रिक सम हो सकता है अगर सभी का डायरेक्शन सेम हो, लेकिन हमें जो नंबर ऑफ सोर्सेज हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन क्या है वो तो हमें मालूम है ही नहीं. तो डायरेक्शन मालूम नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे? वेक्टर सम. एल्जेब्रिक सम तो तब अप्लाई होता है जब सेम डायरेक्शन में हो. मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी ड्यू टू ऑल सोर्सेज, इंडिविजुअल सोर्सेज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अननोन है, तो हम क्या कहेंगे? वेक्टर
sum. That's clear. The force applicable on a point charge, the presence of both electric field and magnetic field is called. The force applicable on a point charge, the presence of both electric field and magnetic field is called Lorentz force. Lorentz force. F equal to Fe plus Fm. क्या हो गया बेटा? QE plus Q cross B is called Lorentz force. क्या आ गया बेटा? Lorentz force. Lorentz force. That's clear. When a charge in a uniform magnetic field is moving at some angle with the field, then the path of the charge is helical. Helical. some एंगल पर देखिए x y z, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका एट सम एंगल ए बी, तो वी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? वी कॉस थीटा. तो वी कॉस थीटा प्रोवाइडेड स्ट्रेट लाइन पाथ, वी जेड इक्वल टू वी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड सर्कुलर पाथ. तो रिजल्टेंट पाथ ड्यू टू स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर हेलिकल पाथ. कौन सा पाथ हो गया? हेलिकल. हेलिकल पाथ हो गया ना बेटा? दैट्स क्लियर. The distance traveled by a charge in a helical path in one rotation along the magnetic field is called which? Distance traveled along helical path in one rotation dx into t. dx क्या था? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना, v cos थीटा, और t क्या हो जाएगा? 2 pi m upon qb. It's called pitch. को क्या कहते हैं? pitch. Horizontal distance traveled by charge particle along helical path in one revolution is called pitch. The radius of circular component of motion in a helical path is called radius of circular component of motion in a helical path is called radius of circular path. Radius of circular path. R इक्वल टू क्या था? mv अपॉन qv. हेलिकल के लिए क्या आ जाएगा? v की जगह क्या आ जाएगा भाई? vz. vz आ जाएगा, होगा ना? R इक्वल टू mvz अपॉन qv. r z क्या हो जाएगा? mv sin थीटा अपॉन qv. ओके ओके ओके. radius of हेलिकल पाथ का रिजल्ट मैंने आपको ये बता दिया है. ओके. नेक्स्ट, इन अ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इन वैक्यूम अ फोर्स ऑफ एक्ट पर यूनिट लेंथ. इसके लिए फ्रॉम इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर एफ अपॉन एल नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ I1 1 I2 1 2 पाई डी इक्वल टू 1. तो 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर. तो 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर. दैट्स क्लियर. व्हेन अ नॉन वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट, नॉन वेरिएबल मींस कांस्टेंट करंट है, फ्लो थ्रू अ रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लूप इज 0. रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. आप बेसिक थ्योरी में आ जाइए बेटा. करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एज्यूम कर लीजिए आप. कौन सा लूं बोलो? क्लॉकवाइज. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है.
तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया राइट हैंड पाम रूल से। इस साइड पर देखें आप, मैग्नेटिक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये क्या हो गया F1। इस पर देखें वर्टिकली अपवर्ड्स, क्या हो गया F2। तो F1 and F2 both having same magnitude and opposite direction, so they are cancel out each other। इसके लिए देखिए, इसके लिए अपन देखें इस तरह से होगा F3 और ये क्या हो जाएगा F4। तो F3 and F4 both having same magnitude and opposite direction, they are cancel out each other। तो फाइनली नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, ऑफलाइन क्लास में इसका डिटेल आपको टॉपिक पढ़ा रखा है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल। ओके, to measure electric current, a galvanometer should be connected in series combination। इलेक्ट्रिक करंट के लिए to convert a galvanometer into an ammeter, a small resistance connected in parallel shunt resistance। okay, to measure electric current a galvanometer should be connected in, करेक्ट, सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में लो रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, अ हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज 99। और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। द नेसेसरी करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मींस IG 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। A shunt resistance of 1 ohm, एस कितना है भैया 1 ohm, is convert with galvanometer, then find the value of maximum current which can be measured by this galvanometer। मैक्सिमम वैल्यू I फाइंड करना। तो अब बेसिक थ्योरी में आ जाइए आप, ये आपका G, ये आपने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। ओके, देखिए I, सर ये IG, I माइनस IG तो पढ़ाया भैया आपको। ये डिवाइस जो है आपका क्या है अमीटर। अब देखिए S and G, S means shunt, G means resistance of galvanometer, both are in parallel combination। You know that from basic concept, potential difference across parallel elements remain same। S पर जो पोटेंशियल होगा वही पर होगा। तो I माइनस IG टू S IG इंटू, दैट्स क्लियर। तो देखिए IS माइनस IG इंटू S, IS को राइट में ले लें, I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा IG S प्लस G अपॉन S। IG कितना है 10⁻³ S कितना है आपका 1, SG कितना है 99, S1 ये 100, तो 10⁻⁻1। तो मैक्सिमम करंट कितना मेजरमेंट कर सकता है -1। मिली में देना चाहें तो आप अपने माइंड में 1000 से डिवाइड कीजिए और 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻3। -1 से क्या हो गया 100 और -3 को हम क्या कहते हैं मिली एम्पियर। तो ये 100 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट का मेजरमेंट कर सकता है। दैट्स क्लियर। ओके ओके, गॉट इट। कपिल, शर्मा जी, अस्मिता, मानसी, गॉट इट बेटा। नेक्स्ट, टू लॉन्ग current carrying conductors, two long current carrying conductor wires are placed parallel to each other at a distance 10 centimeter।
10 सेंटीमीटर 10⁻⁻⁻1 मीटर। I एंड 4I करंट क्या है भैया? I1 इक्वल टू I, I2 इक्वल टू 4I। करंट आर पासेज थ्रू देम इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज ओके। ये कंडीशन है I1 I2। तो इस पॉइंट पर अज्यूम कर लेते हैं हम, ये x होगा, ये रिमेनिंग क्या हो जाएगा भाई? d माइनस टोटल d है ना। तो B1 ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड, B2 ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, ड्यू टू सेकंड कंडक्टर वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम राइट हैंड palm रूल, ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर डाउनवर्ड्स ड्यू टू सेकंड कंडक्टर। ओके, तो B1 प्लस B इक्वल टू नॉट I1 अपॉन 4 पाई x, क्या हो गया? म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई माइनस x डाउनवर्ड्स। अब इसको अपवर्ड्स को डाउनवर्ड्स कर दीजिए, नॉट अपॉन 4 पाई तो कॉमन आ जाएगा बेटा। I1 कितना है आपका? I है 1 नहीं, I x डॉट को क्रॉस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। I2 कितना है? 4I माइनस x, 0 म्यू नॉट 4 पाई 0 में गया भाई, I अपॉन x 4I अपॉन माइनस I से I कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस x इक्वल टू 4x, ये क्या हो गया? 5x इक्वल टू d की वैल्यू गिवन है कि आपको 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, x इक्वल टू क्या आ गया? सेंटीमीटर। तो आपका x क्या आ जाएगा भैया? 2 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? दैट्स क्लियर। ओके, द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 2 मीटर, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 2 मीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर। शर्मा जी बात नहीं, टोटल टर्न्स सोलेनॉइड 1000। Find the value of magnetic field produced at the axis of solenoid when current of 2 ampere passing through it. If an alpha particle is moving the direction of axis of solenoid with a speed of 10 raised to the power 2 meter per second. ये अल्फा पार्टिकल के लिए अल्फा पार्टिकल। Then find the force on alpha particle. Force on alpha particle. तो देखिए, a current carrying solenoid, length, radius, number of turns, the magnetic field along to axial line of solenoid, not Ni, n number of turns per unit length 4 pi into 10 raised to the power minus 7, n कितना? 2000, लेंथ कितनी है? 2 मीटर है ना। I कितना है? 2 एम्पियर। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पर अब टर्न 1000 है क्या? सॉरी, कोई नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है, वैल्यू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया बेटा? 4 पाई टू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4, 0 से, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4, 16, 5, 12.56 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4, डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट कीजिए, 1.256 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 टेस्ला। ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब क्या कह रहा है? अल्फा पार्टिकल मूव्स अलोंग्स टू एक्सियल लाइन, मींस वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? QVB sin 0, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? 0 हुआ कि नहीं हुआ भैया? अरे 0 हो गया ना बेटा। अल्फा पार्टिकल मूव्स अलोंग्स टू एक्सियल लाइन,
So speed means velocity and magnetic field both are parallel to each other. In this condition, theta is equal to 0, sin 0 is equal to 0. So magnetic force act on alpha particle is 0. That's clear? Okay. The ratio of the magnetic field on the axis, the ratio of magnetic field on the axis of a current carrying circular coil of radius H0 at x is equal to A. Very simple. You know that magnetic field at a point on axial line of current carrying circular coil not r square upon 2 r square plus x square whole raised to the power 3 by 2. Okay. From basic theory, in first condition x is equal to 0, so b1 not ni r square x0 तो 2r क्यूब, तो म्यू नॉट ni अपॉन 2r हो गया कि नहीं हो गया भैया, एट x इज इक्वल टू a. अब r इक्वल टू आपको क्या गिवन है, a, यहाँ क्या आ जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन a. ओके, तो देखो b2 म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3 by 2, तो म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2, ये 2a स्क्वायर, तो 2 रेज टू दी पावर 3 by 2 क्या हो गया a क्यूब. ओके, नॉट ni a स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो गया, 2 एज इट इज है, 2 रेज टू दी पावर 3 by 2 मीन्स 2 रूट 2 a. तो b1 अपॉन b2 का रेशो निकालिए, नॉट ni 2 और मिस हो गया था यहाँ, अपॉन 2a नॉट ni अपॉन 2 रूट 2. देखो ये कैंसिल हो गया, 2a कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 ऑपरेटर में आ जाएगा, क्या रेशो हुआ 2 रूट 2 अपॉन 1. दैट्स क्लियर. क्या क्वेश्चन है, the radius of a circular current carrying coil, the radius of a circular current carrying coil is a. At what distance on its axis the magnetic field would be 1 by 8, the value of magnetic field at the center, so b is equal to e naught by 8. मैंने थ्योरी में भी आपको ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं. तो देखो म्यू नॉट ni r स्क्वायर, r की वैल्यू आपको a गिवन है, तो मैं a रख रहा हूं डायरेक्ट, 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 by 2 1 by 8, सेंटर पर म्यू नॉट ni अपॉन 2r, r की वैल्यू a रख दिया भैया. तो देखो म्यू नॉट ni कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या हुआ 8a इधर ले लें, वो अभी कर देंगे, क्या कह रहे हो आप, ये क्यूब क्यों आएगा बेटा, सेंटर पर है ना, हाँ ये ए स्क्वायर इधर है ना, तो क्यूब हो गया, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वेरी गुड. इधर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 by 2, तो दोनों का क्यूब रूट ले लीजिए, क्यूब रूट लेंगे तो 8 का क्यूब रूट 2a, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 by 2. अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3a, तो प्लस माइनस रूट 3, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट. दैट्स क्लियर. ओके. अब देखिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ acting on the two straight parallel current carrying conductors, in which condition will this force be attractive and repulsive. Define the standard unit of current. Define the standard unit of current. Standard unit of current means international definition of electric
करंट। क्लियर? ये आपको मैंने many times ड्राइव करा रखा है। करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, पैरेलल कंडक्टर, सेम डायरेक्शन, अट्रैक्टिव नेचर, अपोजिट डायरेक्शन, रिपल्सिव नेचर। देखिए, लेट अस कंसीडर टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स are placed parallel to each other and separated by distance d. Current flow same direction, current flow in opposite direction, I1 I2। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट, ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकेंड। राइट हैंड पाम रूल, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड से तो लाइन अपवर्ड्स ड्रॉ करेंगे ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर ऑन फर्स्ट कंडक्टर, वर्टिकली अपवर्ड्स हो गया ना, तो लाइन किधर ड्रॉ करेंगे, डाउनवर्ड्स, V2। अब फोर्स के लिए पाम रूल, फिंगर्स अलोंग्स टू मैग्नेटिक फील्ड, थंब अलोंग्स टू करंट, तो फोर्स ये हो गया ना स्मॉलेस्ट पार्ट पर, डेल F1। ओके, स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया आपने, डेल L वेक्टर। इसके लिए देखो, डेल F2, स्मॉलेस्ट पार्ट, अट्रैक्ट करेंगे भैया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस के लिए भी क्या हो जाएगा, क्रॉस 1 V2। देखो, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, हम करंट, तो लेफ्ट में आ गया डेल F1, और इधर क्या आ जाएगा, डेल F2। तो रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, क्लियर? अब आपको फोर्स फाइंड करना है। तो देखो, डेल F1 मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर, I1 मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, ड्यू टू सेकंड कंडक्टर, I1 टू क्रॉस डेल L वेक्टर, वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डेल L वेक्टर, तो थीटा क्या हुआ बेटा, 90 डिग्री। तो डेल F1 I1 टू डेल L साइन 90, टू की वैल्यू क्या होगी, नॉट I2 अपॉन 2 पाई d। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ डेल F1 अपॉन डेल L, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। सिमिलरली डेल F2 अपॉन डेल L, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। और बाकी पूरा कंसीडरेशन, ड्राफ्टिंग वगैरह बेसिक थ्योरी में आपको मैंने पढ़ा रखा है। डेल F1 अपॉन डेल L, डेल F2 अपॉन डेल L, दोनों सेम है, तो आपने अज्यूम कर लिया F बाई L, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, F अपॉन L, यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। अब बेसिक स्टेटमेंट ऑफ करंट, बेसिक स्टेटमेंट ऑफ करंट, बेसिक स्टेटमेंट ऑफ करंट मीन इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कह रहा है डिफाइन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करंट। तो देखिए, I1 I2 इक्वल टू 1 एम्पियर इक्वल टू 1 मीटर, F अपॉन L नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, 1 इंटू 1 पाई इंटू 1, F अपॉन L 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। यहाँ से बेसिक स्टेटमेंट आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में मेंशन करा रखा है। व्हेन करंट फ्लो थ्रू द स्टेट करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय 1 डिस्टेंस, 1 meter distance, then magnetic force per unit length between them 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter. In this case, current flow through the conductors is 1 ampere, और properly आपको mention करा रखा है मैंने। That's clear?
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आप। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।